بلدیہ عظمی کراچی نے کڈنی ہال پارک میں 219 فٹ کی بلند ترین پہاڑی پر قومی پرچم لہرا دیا۔ میٹروپولیٹن کمشنر سیف الرحمان کہتے ہیں کہ بلدیہ عظمی کراچی کی جانب سے بالخصوص کراچی کے شہریوں کے لیے یہ پارک ایک عظیم تحفہ ہوگا۔ پارک کی تعمیر میں ماہرین کا تعاون حاصل ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر آصف اکرام کا ضلع شرکی جمشید اور گلشن زون کا تفصیلی دورہ، صفائی ستھرائی کے کاموں پر اطمینان کا اظہار۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی کا کہنا ہے کہ وسائل کی عدم دستیابی کے باعث ہمیں واٹر ٹینکرز اور باغات کے لیے پانی کی قلت کا سامنا تھا۔ عوامی شراکت داری نظام کے تحت آج کسی حد تک ہم اپنے باغات کو سرسبز و شاداب بنانے کے قابل ہو گئے۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ کہتے ہیں کہ عوامی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ترجیحات کا تعین کر کے اسکیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں۔ ترقیاتی کاموں میں کسی بھی قسم کی خامی یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد کا کہنا ہے کہ بچے ہمارے آنے والا کل ہیں، ان کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ہمیں ہر قسم کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے۔ بچے اپنے ذہن کے مطابق اپنی سمت کا انتخاب کر سکیں۔ بورڈ آف ریونیو کے ڈپارٹمنٹ آٹومیشن آف اسٹیمپ اینڈ رجسٹریشن میں بے قاعدگیاں اور منمانیاں عروج پر ممبر بورڈ آف ریونیو تمیز الدین کھیڑو کی ڈپٹی ڈائریکٹر حبیب اللہ شیخ پر شفقت، ایڈ ہاک بیسس پر بھرتی ہونے والے حبیب اللہ شیخ کی کرپشن۔ شہر کے مختلف مقامات پر کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل کی تجاوزات کے خلاف نمائشی کارروائیاں۔ کارروائی کے دوران ڈسٹرکٹ سینٹرل، ڈسٹرکٹ ساؤتھ، ڈسٹرکٹ کورنگی کے علاقے سے پتھارے، چبوترے اور دیگر تجاوزات کا خاتمہ۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر شہر قائد میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے مہم۔ صدر کیپٹل شاپنگ مال سے متصل گلی میں بلدیاتی اداروں اور پولیس کی ملی بھگت سے پتھارے مافیا کا قبضہ، دکانداروں کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا۔ شہر قائد کے معروف تجارتی علاقے طارق روڈ پر تعمیر ہونے والے انڈر پاس کا کام آخری مراحل میں۔ دسمبر میں انڈر پاس شہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انڈر بائی پاس کی تعمیر سے ٹریفک جام کے مسائل حل ہونے کا امکان۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 10 میں سیوریج کا گندا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ گٹر لائن چوک ہونے کے باعث سیوریج کا پانی سڑکوں پر، راہگیر کو پریشانیوں کا سامنا۔ کراچی کے علاقے گلبرگ چورنگی کی شاہراہ پر گڑھے پڑ گئے، کئی ماہ سے راہگیروں اور ٹرانسپورٹ کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ ٹریفک جام معمول بن گیا، موٹر سائیکل سوار حادثات کا شکار۔ اور کراچی کے علاقے گلستان جوہر حسین ہزارہ گوٹ میں سیوریج کی پانی سے سڑکیں تباہ، عالمگیر خان علاقے سے غائب ہو گئے، عوام منتخب نمائندوں کو ڈھونڈنے میں مصروف۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے بلدیاتی نیوز۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں، اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے کراچی میں جاری 4 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 8.5 ارب روپے جاری کر دیے۔ گرین لائن منصوبے، میٹرک بورڈ تا سخی حسن چورنگی زیر تعمیر سگنل فری کوریڈور اور حیدرآباد میں انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل اینڈ مینجمنٹ سائنس کی تعمیر سمیت دیگر منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ وفاقی حکومت نے کراچی میں جاری 4 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 8.5 ارب روپے جاری کر دیے۔ گرین لائن منصوبے، میٹرک بورڈ تا سخی حسن چورنگی زیر تعمیر سگنل فری کوریڈور اور حیدرآباد میں انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل اینڈ مینجمنٹ سائنس کی تعمیر سمیت دیگر منصوبوں کے لیے فنڈز جاری۔
मजीद आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने कराची में जारी 4 तरक्याती मंसूबों के लिए 8.5 अरब रुपए जारी कर दिए। ग्रीन लाइन मंसूबे, मैट्रिक बोर्ड तासखी हसन चौरंगी जेर तामीर सिग्नल फ्री कॉरिडोर और उसके अलावा हैदराबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट साइंस की तामीर समेत दीगर मंसूबों के लिए भी फंड जारी कर दिए गए। वफाकी हुकूमत ने कराची में जारी 4 तरक्याती मंसूबों के लिए 8.5 अरब रुपए जारी कर दिए। ग्रीन लाइन मंसूबे, मैट्रिक बोर्ड तासखी हसन चौरंगी जेर तामीर सिग्नल फ्री कॉरिडोर रोड और हैदराबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट साइंस की तामीर समेत दीगर मंसूबों के लिए फंड जारी कर दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज बिलाल हसन से। जी बिलाल हसन, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आज हुकूमत के वफाकी हुकूमत की जानिब से जो इनका अपना मरकजी इनके अपने प्रोजेक्ट है जिसमें ग्रीन लाइन बस सिस्टम था जो कि सजाने टाउन से लेकर जो है वो नुमाइश चौरंगी तक की थी, तो इसमें एक तवील अरसे से इसमें फंडिंग के हवाले से काफी ज्यादा जो है एक तकाजा चल रहा था, जिसपे कि गुज़श्ता दिनों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडरान ने इस्लामाबाद में इमरान खान साहब से मुलाकात करने का वक्त दिया था, लेकिन उनके बाद क्योंकि वक्त की कमी थी तो मुशीर खजाना हफीज शेख और जहांगीर तरीन साहब की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में जो कमिटमेंट हुई थी उस कमिटमेंट के तहत जो है वो ग्रीन लाइन मंसूबे में 2 हिस्सों में फंड जारी किया गया है, जिनमें के टोटल 8.5 अरब रुपए जारी किए गए हैं, जिनमें की ग्रीन लाइन नुमाइश चौरंगी तो वो मुकम्मल करने की जो अंडरग्राउंड बस का रूट बना रहे थे वो उसमें 2 अरब रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर जैसे कि हैदराबाद में इन्होंने जारी किया है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल मैनेजमेंट एंड साइंस के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं, और कराची के जो गुरु मंदिर से लेके नॉर्थ नाजाबाद तक के लिए जो उन्होंने सिंगल कॉरिडोर है उसके लिए भी उन्होंने कुछ रकम जारी की है, जिनमें के तकरीबन ये 4 अरब रुपए के करीब हैं, और मेट्रो बंदर साइड रोड के 100% रकम जारी कर दी गई है। मैट्रिक बोर्ड और सखी असम तक जो है ये भी कंप्लीट कर ली जाएगी, तो लिहाजा 8.5 अरब रुपए की रकम जारी की है। ये कुल तौर पर जो है कराची के ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम में से जारी की गई, जिनमें तकरीबन 7.5 अरब रुपए जो है वो कराची के लिए हैं, जिसमें 50 करोड़ रुपए जो है वो हैदराबाद के लिए उसमें खर्च किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया बिलाल हसन, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपने नाजरीन को बताएं कि वफाकी हुकूमत ने कराची में जारी 4 तरक्याती मंसूबों के लिए 8.5 अरब रुपए जारी कर दिए। ग्रीन लाइन मंसूबे, मैट्रिक बोर्ड तासखी हसन चौरंगी जेर तामीर सिग्नल फ्री कॉरिडोर और हैदराबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट साइंस की तामीर समेत दीगर मंसूबों के लिए फंड्स जारी कर दिए। अब अपने नाजरीन को बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज काबीना का इजलास तलब कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मातहत अदालतें कायम करने और विंड सोलर पावर प्रोजेक्ट की जमीन की अलॉटमेंट और सिंध हायर एजुकेशन कमीशन में भर्तियों के मामले पर गौर किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज काबीना का इजलास तलब कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मातहत अदालतें कायम करने, विंड सोलर पावर प्रोजेक्ट की जमीन की अलॉटमेंट और सिंध एजुकेशन कमीशन में भर्तियों के मामले पर गौर किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज KM अब्बासी से। जी KM अब्बासी, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध की ज़रिए सदारत आज सिंध काबीना का इजलास होगा, जहां पर तमाम जो कि एक अहम कानून साजी है वो भी एजेंडा में शामिल की गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मातहत अदालतें कायम करने का मामला भी एजेंडा में शामिल है, और इसी तरह से सिंध हायर एजुकेशन कमीशन की जो भर्तियों के रूल्स हैं उस जो तरामीम है उसके मुतालिक भी सिंध काबीना से मंजूरी ली जाएगी। इसी तरह से महकमा आर्काइव और इतला जो है उस सकाफत को ट्रांसफर करने से मुतालिक, और इसके अलावा सिंध लैंग्वेज अथॉरिटी कायम करने के मुतालिक भी जो एजेंडा है वो उसमें शामिल किए गए हैं। इसी तरह से विंड सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं, और इसी तरह से अहम कानून साजी है जो कि एजेंडा का हिस्सा है। वज़ीर आला की ज़रिए सदारत ये इजलास सिंध सेक्रेटेरिएट में होगा। जी बहुत शुक्रिया KM अब्बासी, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपने नाजरीन को बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज काबीना का इजलास तलब कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मातहत अदालतें कायम करने, विंड सोलर पावर प्रोजेक्ट की जमीन की अलॉटमेंट और सिंध हायर एजुकेशन कमीशन में भर्तियों के मामले पर गौर किया जाएगा।
अपने नाजरीन को बताएं कि सिंध में टिड्डी दल का फसलों पर हमले के बाद वजीर ज़राअत इस्माइल राहो ने सिंध हुकूमत की जानिब से विफाक को खत लिख दिया। कहते हैं कि विफाक सिंध हुकूमत को स्प्रे के लिए 3 जहाज 32 गाड़ियां फराम करे। अपने नाजरीन को यहाँ पे बताते चलें कि सिंध में टिड्डी दल का फसलों पर हमले के बाद वजीर ज़राअत इस्माइल राहो ने सिंध हुकूमत की जानिब से विफाक को खत लिख दिया। कहते हैं कि विफाक सिंध हुकूमत को स्प्रे के लिए 3 जहाज और 32 गाड़ियां फराम करे। अपने नाजरीन को बताते चलें कि सिंध में टिड्डी दल का फसलों पर हमले के बाद वजीर ज़राअत इस्माइल राहो ने सिंध हुकूमत की जानिब से विफाक को खत लिख दिया। इस हवाले से आपको बताते चलें कि विफाक सिंध हुकूमत को स्प्रे के लिए 3 जहाज 32 गाड़ियां फराम करे। दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए बल्दियाती खबरें। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिपार्टमेंट ऑटोमेशन ऑफ स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में बेकायदगियां और मनमानियां उरूज पर पहुंच गई। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमीजुद्दीन खेड़ो ने डिप्टी डायरेक्टर हबीबुल्ला शेख पर शफकत का हाथ रख दिया। आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिपार्टमेंट ऑटोमेशन ऑफ स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में बेकायदगियां और मनमानियां उरूज पर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमीजुद्दीन खेड़ो की डिप्टी डायरेक्टर हबीबुल्ला शेख पर शफकत डॉग बेसिस पर भर्ती होने वाले हबीबुल्ला शेख की करप्शन। करने से कबल ना कोई इश्तिहार दिया गया, ना मेरिट को खातिर में लाया गया, बस अपने लोगों को नवाजा गया। ज़राए के मुताबिक कुछ घोस्ट मुलाजमीन भी भर्ती किए गए, जिनमें तलत काशिफ को PRC हैदराबाद, मिस अंबर खान, एहसन अब्बास और मोहम्मद वसीम को DSU कराची में तैनात किया गया। ये मुलाजमीन तैनाती के बाद से गैर हाजिर हैं, लेकिन बाकायदगी से तनख्वाह ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इन करम नवाजियों की मद में डिप्टी डायरेक्टर हबीबुल्ला शेख को कुछ हिस्सा देकर नवाजा जाता है। कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी से 6 माह के लिए डिप्टी डायरेक्टर तैनात होने वाले हबीबुल्ला शेख ने अपनी को कानूनी बनाने के लिए मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमीजुद्दीन खेड़ो के जरिए मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को समरी इरसाल कर दी है, जबकि एडहॉक पर भर्ती होने वाले हबीबुल्ला शेख को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमीजुद्दीन खेड़ो ने समरी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम जाहिर किया है और समरी मिनिस्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पहुंचा दी गई है। ज़राए के मुताबिक हबीबुल्ला शेख ने पोस्टिंग के दौरान अपने असासों में हैरत अंगेज तौर पर इजाफा किया, जिसमें अपने और अहले खाना के नाम मुख्तलिफ प्रॉपर्टी शामिल है। इतनी संगीन बेकायदगी पर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमीजुद्दीन से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया तो मौसूफ ने मौक़िफ़ देने के बजाय हट धर्मी दिखाते हुए अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर हबीबुल्ला शेख ने मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमीजुद्दीन खेड़ो के जरिए समरी को पास कराने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इलाकों से पतारे, चबूतरे और दीगर तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। अपने नाजरीन को बताएं कि सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की ज़ेर सदारत और ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में कोरंगी नंबर 1 से कोरंगी 2.5 नंबर डबल रोड तक ऑपरेशन किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज शुजात कुरैशी से। जी शुजात कुरैशी, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, KMC के एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से भी आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की है। खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट साउथ और कोरंगी में जो है पथारों ठेले जो हैं वो कब्जे में लिए गए। ताहम कोरंगी में कार्रवाई के दौरान जो है मजामत पर 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि शहर भर से तजावुजात का खात्मा किया गया। उसके बाद हमने देखा कि एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट काफी एक्टिव नजर आ रहा है और यही वजह है कि वो जगह जगह कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन KMC के इस डिपार्टमेंट को बहुत सी जगह पर मजामत का भी सामना करना पड़ता है और यही वजह है कि आज कोरंगी में मजामत पर 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ताहम इसके साथ साथ जो है सैकड़ों की तादाद में जो कोरंगी और साउथ के डिस्ट्रिक्ट में जो पथारे और छज्जे जो लगे हुए थे उनको मस्मार किया गया है। इसके साथ साथ जो तजावुजात जहाँ पर कायम थी उनको
हटाया गया, मसमार किया गया है। खासतौर पर जो कबूतर घेरे हुए थे दुकानदारों ने और जो रेस्टोरेंट वालों ने कुर्सियां रखी हुई थी, उनके सामान को भी जब्त किया गया। इसी तरह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये कार्रवाइयां की जा रही हैं और जो बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है पुलिस भी जो है केएमसी की मदद करती नजर आती है। इसलिए जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकाम जारी किए हैं कि पुलिस भी जो है तजावुज़ात के खात्मे में अपना किरदार अदा करे। उसके बाद हमने देखा कि शहर भर से ये केसेस हट गए हैं और जो है और भी जगह जहाँ जहाँ लगे हुए थे वहां से इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। जी शुजात कुरैशी, मजीद बताइएगा कि इस वक्त तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है लेकिन कुछ टाइम बाद दोबारा तजावुजात कायम कर दिए जाते हैं, इस हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसा नासूर है तजावुजात जो है कि कभी खत्म होने का नाम नहीं ले सका और इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुताबिक बार अहकाम जारी किए गए हैं। और उसके बाद हमने देखा कि केएमसी का एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट हो या डीसी हो या डीएमसी के महकमे हो, वो कार्रवाई तो करते नजर आते हैं। लेकिन हमने देखा कि रिश्वत की एवज जो है ये पथरारे दोबारा से लगा दिए जाते हैं। इस बार यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सब अहकाम जारी किए गए, पुलिस से भी ऑन बोर्ड लेने का कहा गया। और जब से पुलिस ऑन बोर्ड आई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि शहर भर से जो पसेडीज हैं खासतौर पे वो हटा दिए गए हैं और जो ठेले और पथरारे लगा करते थे वो भी हट गए हैं। तो अभी भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर ये ठेले और पथरारे कायम है। खासतौर पे जो मार्केटें हैं वहाँ पर जो है तजावुज़ात की बहुत ज्यादा भरमार होती है। उसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक जैम होता है बल्कि जो फुटपाथ पर चलने वाले हैं वो भी अपने हक से महरूम हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, डीएमसी की हदूद में शहर भर के अंदर होटल जहाँ कायम है वहाँ फुटपाथों को कुर्सियां रखकर घेर लिया जाता है, कहीं कहीं जो है टेबलें लगा दी जाती हैं और इसकी एवज जो है मुहैया तो पुलिस और डीएमसी केएमसी के अफसरान जो है इसको लेके ये सुप्रीम कोर्ट की अहकाम की धज्जियां उड़ाते हैं और उस पर अमल दरामद नहीं करवाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी है, साउथ भी है, कोरंगी भी है और ईस्ट भी है, कुछ ऐसे इलाके और है जहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी तक शहर भर से मुकम्मल तौर पर तजावुज़ात का खात्मा नहीं हुआ है। केएमसी का महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ये जो है वो कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा कि ये शहर भर से तजावुज़ात का खात्मा मुकम्मल तौर पर कब मुमकिन हो सकेगा। बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, तफसीलात साझा करने के लिए। अपने नाज़रीन को बताएं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कार्रवाइयों के दौरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इलाकों से पथारे, चबूतरे और दीगर तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर शहर कायद में तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुहिम जोरों शोर से जारी है। आपको बताएं कि सदर में शॉपिंग मॉल से मुतासिल गली में बल्दियाती इदारों और पुलिस की मिली भगत से पथारे माफिया का कब्जा है, जिसकी वजह से दुकानदारों के लिए कारोबार करना और सारिफीन के लिए गुजरना अजाब बन गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करते हुए पुलिस और बल्दियाती इदारे पूरे शहर में तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम जोरों शोर से जारी रखे हैं। लेकिन दूसरी जानिब सदर में शॉपिंग मॉल के तरफ और उससे मुतासिल गलियों में पथारे माफिया का राज है। एक जानिब दुकानदारों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है, जबकि दूसरी जानिब खरीदारों के लिए वहां से गुजरना मुहाल हो चुका। मार्केट जराए के मुताबिक दुकानों के एतराफ तजावुज़ात के बाइस 20 फीट की सड़क 4 फीट रह गई है। मार्केट जराए का कहना है कि तजावुज़ात के कायम करने के लिए पुलिस और बल्दियाती इदारे बाकायदा नजराने वसूल कर रही हैं। मजीद उनका यह कहना था कि बार बार केएमसी और डीएमसी साउथ को दरख्वास्त देने के बावजूद तजावुज़ात हटाना तो दूर की बात, मजीद तजावुज़ात नजर आ रहे हैं। शहर कायद के मारूफ तिजारती इलाके तारिक रोड पर तामीर होने वाले अंडरपास का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। दिसंबर में अंडरपास शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। मसरूफ तरीन तिजारती इलाकों में अंडरपास की तामीर से ट्रैफिक जाम के मसाइल हल हो जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शाहरुख शाह से। जी शाहरुख शाह, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से?
جی اس وقت میں موجود ہوں طارق روڈ انڈر بائی پاس پہ، جہاں پہ تعمیرات کا کام جو ہے انڈر بائی پاس کا وہ تقریباً جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ آخری مراحل کا فنشنگ کا کام اس وقت جاری ہے، جو کہ جو ہے وہ بقول یہاں کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے خالد مسرور، ان کا کہنا ہے کہ تقریباً ایک ہفتے میں یہاں کا طارق روڈ انڈر بائی پاس کا کام تقریباً مکمل ہو جائے گا۔ اگر میں بات کروں اس پروجیکٹ کی تو مارچ 2019 سے یہ پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا تھا، جو کہ اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگر میں پروجیکٹ کی بات کروں طارق روڈ انڈر بائی پاس کی تو 550 ملین کا یہ پروجیکٹ تھا، جو کہ جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ اس کے بعد کا اگر میں بات کروں تو حیدر علی انڈر بائی پاس ہے، وہ تقریباً جو ہے وہ کچھ دن لگیں گے اس کو کمپلیٹ ہونے میں۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان فلائی اوور ہے، وہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ تقریباً 1886 ملین کا یہ تینوں پروجیکٹ تھے، جس میں ٹیپو سلطان فلائی اوور کمپلیٹ ہو چکا ہے اور طارق روڈ انڈر بائی پاس اپنے آخری مراحل میں ہے، جو کہ ایک ہفتے میں مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پہ جو صورتحال ہے ٹریفک کی وہ شدید متاثر تھی اس کام شروع ہونے کی وجہ سے، جو کہ اس کھلنے کے بعد تقریباً جو ہے وہ عوام کے لیے سہولت میسر آ جائے گی۔ سگنل بقول یہاں کے پروجیکٹ ہیڈ کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ سگنل فری جو ہے وہ انڈر بائی پاس بنایا گیا ہے، عوام کی سہولت دی گئی ہے کہ انڈر بائی پاس بنایا گیا ہے وہ سگنل فری ہے، عوام کو جو ہے وہ سگنل فری جو ہے وہ روڈ ملے گا اور یہاں پہ عوام کی سہولت کے لیے یہ مکمل کیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ جو بارشیں کراچی میں جو ہے وہ حالیہ بارشیں ہوئی تھیں، اس کی وجہ سے کام ڈیلے ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اب جو ہے وہ یہ مکمل ہونے جا رہا ہے اور ایک ہفتے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مکمل کر لیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ شاہ رخ شاہ، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ شہر قائد کے معروف تجارتی علاقے طارق روڈ پر تعمیر ہونے والے انڈر پاس کا کام آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ دسمبر سے انڈر پاس شہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ معروف ترین تجارتی علاقے میں انڈر بائی پاس کی تعمیر سے ٹریفک جام کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کراچی میں سندھ حکومت کی جانب سے متعدد ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔ شہید ملت روڈ پر تعمیر ہونے والے طارق روڈ انڈر پاس کا کام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ اگلے ماہ انڈر پاس شہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ طارق روڈ انڈر پاس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر خالد مسرور کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، جس کی لاگت 1886 ملین ہے۔ یہ مارچ میں پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا اور اب انشاءاللہ 1 دسمبر تک ہم تیار ہیں اس کو اوپن کرنے کے لیے۔ خرچہ اس پرٹیکولر پروجیکٹ جو کہ حصہ ہے حیدر علی اور ٹیپو سلطان فلائی اوور کا کے ساتھ نا، تو ٹوٹل 1886 ملین کا تھے یہ 3 پروجیکٹس۔ اس کے اوپر خرچہ 550 ملین آیا ہے اور یہ پروجیکٹ تیار ہے انشاءاللہ۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بتایا کہ یہ روڈ جیل چورنگی سے ہل پارک تک سنگل فری ہوگا، جس سے عوام مستفید ہوں گے۔ تینوں پروجیکٹس کے بعد یہ پورا شہید ملت روڈ سگنل فری ہو جائے گا، جو کہ کنیکٹ ہوگا آپ کا یونیورسٹی روڈ فرام جیل چورنگی سے، وچ از اگین سنگل فری کوریڈور اپ ٹو سفورہ گوڈ۔ وہ بھی گورنمنٹ آف سندھ سے ہی کے تعاون سے جو ہے وہ بنا ہے۔ اور پیچھے کی طرف جائیں گے تو ہینو چوک سے جو ہے آپ اپ ٹو سفورہ گوڈ کوئی آپ کو سگنل نہیں ملے گا ایکسیپٹ کہ ٹریفک جو کہ پیک آورز میں ہوتی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طارق روڈ انڈر پاس کے علاوہ حیدر علی انڈر پاس کا کام بھی جاری ہے۔ سال کے آخر تک وہ بھی مکمل کر لیا جائے گا، جس سے مصروف ترین تجارتی علاقے میں ٹریفک کے مسائل پر مکمل قابو پایا جا سکے گا۔ کیمرہ مین جنید اسلم کے ساتھ شاہ رخ شاہ، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ یہاں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے ناظم آباد کو تباہ کر دیا۔ پاپوش نگر کے مختلف علاقوں میں سیوریج کا پانی جمع، شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، ٹریفک کی روانی متاثر۔ ناظم آباد میں پورشن بننے کے بعد سیوریج لائنیں چوک ہو گئیں۔ سندھ حکومت نے ناظم آباد کو تباہ کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ میٹرو 1 نیوز حفیظ انصاری سے۔ جی حفیظ انصاری، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟
जी हाँ, बिल्कुल शहर में जहाँ जहाँ देखते हैं हम, कहीं सीवरेज का पानी नज़र आता है, कहीं कचरा, कहीं गंदगी। लेकिन ये देख सकते हैं, ये है पापोश नगर का है खिलाफत चौक पे किस तरह ये सीवरेज के पानी का है राज। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक किस तरह, लोग जो परेशानी मुश्किल का शिकार हैं। और अगर ये देखें तो चौक के चारों तरफ जो है, हम जो गलियां हैं वहाँ अंदरूनी तौर पर गलियों में भी वहाँ ये सीवरेज का पानी बह रहा है और एक तालाब का मंजर जो है पेश कर रहा है यहाँ सीवरेज का पानी। और ये आज से नहीं बताया जाता है कि कई रोज़ से यहाँ पर इसी किस्म की सूरत हाल है। कभी ये सीवरेज का पानी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी साफ़ किया जाता है, तो अगले 2 दिन के बाद फिर ये सीवरेज का पानी यहाँ पर आ जाता है। ये कारोबारी इलाका है, कमर्शियल इलाका है, यहाँ से यकीनन जो है लाखों रुपए रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को वसूल होता होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर लोगों के आमदोरफ्त का सिलसिला भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर आबादी भी है, अतराफ में यहाँ पर मकानात हैं, रहायशी के लोग जब यहाँ पर से निकलते हैं फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, तो यकीनन उनको मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ता है। मोटरसाइकिल सवार ख़ास तौर पर यहाँ पर अक्सर बताया जाता है कि गिर भी पड़ते हैं और यहाँ पर ख़वातीन जो हैं उनकी मोटरसाइकिल पर से गुजरना इंतहाई मुश्किल होता है। शहर के अंदर जैसे कि मुख्तलिफ मकामात पर हम देखते हैं कि सीवरेज का पानी नज़र आता है, इसी तरह यहाँ पर यह खिलाफत चौक जो कि पापोश नगर का है, यहाँ पर इस वक्त सीवरेज के पानी का ना सिर्फ देखना है एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है, बल्कि अंदरूनी जो गलियाँ हैं वहाँ भी हम देख रहे हैं कि वहाँ ये सीवरेज का पानी मौजूद है, गंदगी मौजूद है। इस सिलसिले में यहाँ पर अब तक किसी किस्म की कोई ऐसी तवज्जो नहीं दी गई है कि यहाँ पर इसकी नक्कासियाब का मसला हल किया जा सके। शहरी कहते हैं कि इसकी शिकायत जो है हमने मुताल्लिका हुक्काम को और यूसिस को भी की है, लेकिन वो इस सिलसिले में जो है आदम वसाइल का रोना रोते हैं और इस सिलसिले में जो है वसाइल जो है उनके पास ना होने की वजह से ये मसाइल जो है शहर के अंदर और शहरियों का वहीं के वहीं जो कि तू नज़र आते हैं, ये मसाइल जो है हल होने को नहीं दे रहे हैं। बल्कि बताया जाता है ये पानी और ये सीवरेज की जो लाइनें हैं यहाँ पर बस बरस से हैं, 30-40 साल हो गए लाइनों के, जो कि नाकारा हो चुकी हैं। यही वजह है कि जब इन पर प्रेशर पड़ता है तो ये सीवरेज की लाइनें जो फट जाती हैं, इनका गंदा पानी जो है रोडों पर आ जाता है। जैसा कि इस वक्त जो है ये पापोश नगर खिलाफत चौक पर जो है सीवरेज का पानी बह रहा है। जी बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी। तफसीलात से आगाह करने के लिए अपने नाजरीन को बताएं कि सिंध हुकूमत ने नाज़िमाबाद को तबाह कर दिया। पापोश नगर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का पानी जमा, शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नाज़िमाबाद में पोर्शन बनने के बाद सीवरेज लाइनें चौक हो गईं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा फ्लाई ओवर के नीचे सीवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिससे इलाके में वबाई अमराज फैलने का खदशा बढ़ गया। कराची के मारूफ तरीन इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 नीपा फ्लाई ओवर के नीचे सीवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। गटर लाइन भर जाने से सीवरेज का पानी सड़कों पर आ गया, जिससे इलाका मकीनों समेत राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज का पानी कई माह से जमा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। ये पिछले 7 महीनों से ये ऐसे गटर उबल रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ। ये बिल्डिंग्स 10-15 बिल्डिंग्स हैं, चैसब की गली है, ये इस गली से आप आए यूं जाएं, ये चारों तरफ आप देखें, आपको कहीं 10 फीट जो है ना सूखी रोड नहीं मिलेगी। इसी गंदगी के ऊपर हमने कई दफा देखा यहाँ पे फैमिलीज मोटरसाइकिल पे गिर रही होती हैं। इन बिल्डिंग्स के अंदर हर तीसरे घर में डेंगू का मरीज है, टाइफाइड, बच्चे टाइफाइड के बीमार हैं, बाहर निकल नहीं सकते। मैं कहता हूँ कि ये गुलशन इकबाल, ये गटर इकबाल से बदतर बना हुआ ये इलाका। गंदगी के ढेर पे हम बैठे हुए हैं, पता नहीं किस इस इलाके में, इस जगह पे, ऐसे माहौल में, ऐसी जगह पे जानवर रहे तो वो मर जाए। हम किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं पता नहीं, किसी को कोई ख्याल नहीं। हर महकमे के पास सब यूनियंस गई हैं, ये KMC वाले साथ बैठे, ये कोई पूछने वाला नहीं। जैसे यहाँ पे इंसान रहते नहीं, कोई जानवर न रहे ऐसी जगहों पे। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतअल्लिका हुक्काम को शिकायत की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें लावारिस छोड़ दिया गया है। जनाब, इस इलाके में 6 महीने से सीवरेज की लाइनें बॉयल हो रही हैं। जब से अंडरग्राउंड केबल डला है, 6 महीने से ओरिजन के चारों तरफ नीपा के अराउंडिंग सारा गटर का पानी है। बच्चे बीमार हुए हैं, डेंगू हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, कोई पुरसान हाल नहीं। बराबर में KMC का ऑफिस है, ये भी गुजर रहे हैं, कोई पूछता नहीं है। तो खुदारा कुछ जो है ना इस इलाके में रहम करें। सिंधवाद में लोग आते हैं, छुट्टी का दिन है, वहाँ वो बंद पड़ा है, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछता भी नहीं है। सारा जो है कराची का जैसे गंद हो, नीपा के चारों तरफ कोई पूछता नहीं।
خدا کے لیے خدا کا خوف کریں. یہ بھی علاقہ ہے, یہاں بھی انسان رہتے ہیں. یہ حال ہے گٹر کا, سیوریج کا پانی 24 گھنٹے بہتا رہتا ہے. یہ دیکھیں جیسے کوئی انسان نہیں, جانور رہ رہے ہوں. یہاں سیوریج کے گندے پانی کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں, جبکہ سیوریج کے تباہ شدہ نظام نے سڑکوں کی حالت بھی ابتر کر دی ہے, جس سے آئے روز حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں. کیمرہ مین شیراز مصطفیٰ کے ساتھ شاہ رخ شاہ, میٹرو ون نیوز, کراچی. کراچی میں گلبرگ چورنگی کی شاہراہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی. سڑک دھسنے اور گہرے گڑھے عوام کے لیے پریشانی کا باعث بن گئے. گلبرگ چورنگی کی شاہراہ پر کئی ماہ سے پڑے گڑھے گزرنے والوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں. آدھی سے کم شاہراہ استعمال کے لیے رہ گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں ٹریفک جام رہتا ہے. موٹر سائیکل سوار اکثر گر پڑتے ہیں, مگر ارباب اختیار شاید کسی بڑے حادثے کے منتظر ہیں. عوام نے تو کراچی کے مسائل کے لیے حکومت سے امید ہی چھوڑ دی ہے. شہری مایوسی کے انداز میں کہتے ہیں کوئی کچھ کرنے والا نہیں. کو بنانا چاہیے, اس کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی ہے. ریسٹورنٹ والوں کو چاہیے ان کو اپنی مینٹیننس کے لیے کم از کم اپنے ریسٹورنٹ کے آگے کا فٹ پاتھ ہی مینٹین کر لیں, تاکہ جو آرڈر ریسیو کرنے آ رہے ہیں, کھانے آ رہے ہیں لوگ, ان کو سہولت ہو جائے. حکومتی اداروں کو چاہیے کہ تھوڑا اس طرف بھی آئے جہاں مضافاتی علاقے ہیں, جو اتنی مین شاہراہیں ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اس پہ بھی تھوڑی توجہ دیں, اور اپنے جو مال بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے خلاف جو ہے بول چال کرتے رہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ عوامی مسائل کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ کرے. میئر کو اختیارات تو دیتے نہیں ہیں, نہ پیسے دیتے ہیں, ساری سندھ گورنمنٹ کھا جاتی ہے پیسے. کچھ بولیں گے, اس دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے کھڈے ہیں یا پیسنجر پریشان ہوتے ہیں. انٹرنل کام جو ہوتے ہیں یہ یونین کونسل اور ٹاؤن ڈسٹرکٹ کے ہوتے ہیں. یہ دوسرے کے اوپر صرف اپنا وزن لگا کر اور اپنے اوپر بوجھ ہلکا کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کوارڈینیشن کرنا چاہیے. جہاں تک اگر ان سے نہیں ہو سکتا کام تو یہ سندھ گورنمنٹ سے مدد لیں. شہر کی ٹوٹی سڑکوں سے گزر کر لگتا ہے شہر کراچی میں نہیں کسی گاؤں کی کچی شاہراہ سے گزر رہے ہیں. کیمرہ مین رشید علانہ کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو ون نیوز, کراچی. بلدیہ عظمیٰ کراچی نے کڈنی ہال پارک میں 219 فٹ کی بلند ترین پہاڑی پر قومی پرچم لہرا دیا. میٹروپولیٹن کمشنر سیف الرحمان کہتے ہیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے بالخصوص کراچی کے شہریوں کے لیے یہ پارک ایک عظیم تحفہ ہوگا. پارک کی تعمیر میں ماہرین کا تعاون حاصل ہے. آپ کو بتائیں کہ میٹروپولیٹن کمشنر ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے چیف فائر آفیسر تحسین احمد صدیقی اور فائر بریگیڈ کے دیگر عملے کے ہمراہ قومی پرچم کو بلند کیا. 219 فٹ کی بلند پہاڑی پر 40 فٹ اونچے کھمبے پر قومی پرچم شہر کے مختلف علاقوں سے نظر آتا ہے. شہر کے مختلف علاقوں سے شہریوں نے اس پرچم کشائی کا مظاہرہ دیکھا. قومی پرچم اب مستقل بنیادوں پر اس بلند پہاڑی پر لہراتا رہے گا. قومی پرچم لگائے جانے کے موقع پر پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے. آپ کو بتائیں کہ دھوراجی کالونی میں رنگون والا ہال کے عقب میں 62 ایکڑ رقبے پر مشتمل کڈنی ہال پارک وہ مقام ہے جہاں گزشتہ کئی سالوں سے شہر بھر کا کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا تھا اور مختلف مافیا کی جانب سے یہاں غیر قانونی تعمیرات بھی بنا لی گئی تھی. پارک میں ہونے والے تمام کاموں میں اس بات کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی پر یہاں ہونے والے کاموں کا مالی بوجھ نہ پڑے, بلکہ دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے پارک میں مختلف نوعیت کے کام کرائے جائیں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر آصف اکرام نے ضلع شرکی, جمشید اور گلشن زون کا تفصیلی دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کے کاموں پر اطمینان کا اظہار کیا. ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ آصف اکرام نے متعلقہ افسران کے ہمراہ یونیورسٹی روڈ, سر شاہ سلیمان روڈ, غازی شاہ روڈ اور اس کے ساتھ کارساز, شارع قائدین اور دیگر روڈز کا دورہ کیا اور علاقے کا دورہ کر کے صفائی کی صورتحال کا معائنہ بھی کیا. اس موقع پر انہوں نے نور گراؤنڈ کے اطراف پڑے ڈسٹ بن رکھنے کی ہدایت کی. انہوں نے صفائی کے بہتر صورتحال پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس موقع پر موجود چائنیز عہدیداران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کچرا اٹھانے کے کام میں تیزی لائی جائے اور ڈسٹ بن کی مرمت اور صفائی کا کام یقینی بنایا جائے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان کی شکایت کا بروقت ازالہ کیا جائے.
आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि वसाइल की अदम दस्तयाबी के बायस हमें वाटर टैंकर्स और बागात के लिए पानी की किल्लत का सामना था, तहम अवामी शराकत दारी निज़ाम के तहत आज किसी हद तक हम अपने बागात को सरसब्ज और शादाब रखने के काबिल हो गए हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने बल्दिया वस्ती के मुख्तलिफ पार्क्स का दौरा किया और पार्क्स में जारी तज़ीन और आराइश और दीगर मामलात का जायजा लिया। दौरे के मौके पर हक परस रुकन सिंध असेंबली सैयद अब्बास जाफरी और मुताल्लिका अफसरान भी उनके हमरा थे। इस मौके पर रेहान हाशमी का कहना था कि जिला वस्ती की हरियाली की बहाली और इसमें इजाफा हमारा अहम तरीन मकसद है। इससे कबल जहाँ भी पौधे लगाए जाते हैं लेकिन मुनासिब देखभाल न होने के बायस वो तबाह हो जाते हैं। बल्दिया वस्ती के चेयरमैनशिप का मनसब संभालने के बाद से हमने कोशिश की है कि अहले इलाकों को जिम्मेदार बनाकर उन्हें हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। देखें, बल्दिया जिला वस्ती में मुस्तकिल बुनियादों पर शजरकारी तो जारी है और शजरकारी हम उस जगह पर ही कर सकते हैं कि जहां पर पानी की दस्तयाबी मेक श्योर हो। ये हम अभी खड़े में आयशा पार्क में 9 नंबर ब्लॉक है, ये गुलबर्ग और फडलबी एरिया का इलाका है। यहाँ पर मोहल्ला कमेटी मोबिलाइज हुई है, कस्टोडियन और वाली वारिस बनने को तैयार हुई है, तभी ये मुमकिन हुआ है कि यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ जारी है। आज हमने यहाँ पर 60 पौधे लगाए हैं जिसमें फ्रूट के प्लांट्स भी हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये इनको तक़वियत मिलेगी जब इनके वाली वारिस अहले मोहल्ला इन पौधों का ख्याल करेंगे। बल्दिया ज़िला वस्ती में इस तरह की बेशुमार जगहें हैं जहाँ पर मोहल्ले वाले एक्टिव हुए और वो चाहे वो छोटा पार्क हो बड़ा पार्क हो वो उसने ग्रो किया है। कराची वालों को ज़रूरत ही ओनरशिप की है क्योंकि कराची को जो अरबाब इख्तियार है वो ओन नहीं करते, वो कराची से अपने रिसोर्सेज जनरेट करते हैं। कराची वालों को ही कराची को ओन करना पड़ेगा और ये इसकी मिसाल है। इस तरह की बेशुमार मिसालें कायम हैं। हमारी दुआ है कि जो कराची का जो हक है जल्द अज जल्द उसको उसका हक मिले। कराची वाले जो हमेशा से पाकिस्तान की इकॉनमी में पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए अपना किरदार अदा करते रहे हैं, उनको उनका ड्यू राइट भी मिले। उन्होंने कहा कि वसाइल के अदम दस्तयाबी के बायस हमें वाटर टैंकर और बागात के लिए पानी की किल्लत का सामना था, तमाम अवामी शराकत दारी निज़ाम के तहत आज किसी हद तक हम अपने बागात को सरसब्ज और शादाब रखने के काबिल हो गए हैं। अवामी शराकत दारी निज़ाम के तहत हम यौमिया 2 लाख गैलन पीने के पानी की बचत कर पा रहे हैं और सीवरेज पानी को ट्रीट करके बागात और सब्जे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि अवामी मसाइल को सामने रखते हुए तरजीहात का तयन करके स्कीमें तश्कील दी जा रही हैं। तरक्याती कामों में किसी भी किस्म की खामी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने वाइस चेयरमैन बल्दिया मलीर अब्दुल खालिक मरवत, म्यूनिसिपल कमिश्नर सफदर अली बुघियो, यूसी चेयरमैन नासिर हसन आवान के हमरा, अस्करी टाउन यूसी कायदाबाद के अंदरूनी गलियों में रोड कारपेटिंग के तामीराती काम का मुआयना करते हुए कहा कि मलीर में तेजी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से तरक्याती कामों को मजीद वुसअत दे रहे हैं। मलीर में आवाम की फलाह बहबूद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तरक्याती कामों को मजीद वुसअत दे रहे हैं। मलीर में आवाम की फलाह बहबूद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तरक्याती कामों का तसलसल जामे मनसूबाबंदी के तहत जारी है। आवाम के बढ़ते हुए मसाइल सामने रखते हुए तरजीहात का तयन करके स्कीमें तश्कील दी जा रही हैं। देही और शहरी इलाकों में यकसा सहूलियत फराहम करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने इस मौके पर मौजूद मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि रोड की तामीर में किसी भी किस्म की खामी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मटेरियल की क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाए। रोड की थिकनेस पर 20 फुट के फासले पर चेक की जाए ताकि थिकनेस का लेवल बरकरार रखा जा सके। मौके पर मौजूद बल्दियाती नुमाइंदों ने चेयरमैन बल्दिया मलीर का यूसी कायदाबाद के दीगर बल्दियाती मसाइल के हवाले से आगाह करते हुए कहा कि हमारी यूसी में चंद और शाहराहों पर कारपेटिंग की अशद जरूरत है। कुछ इलाकों में सीवरेज के मसाइल हैं जिन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की जरूरत है। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने मौके पर मौजूद मुताल्लिक़ अफसरान को मजीद हिदायत देते हुए कहा कि निशानदेही करदा शाहराहों पर नए रोड की तामीर के हवाले से रिपोर्ट पेश की जाए। आज यूसी 7 जफर टाउन में कारपेट का काम शुरू हो चुका है जिसमें हमारी पूरी टीम आज इस कारपेट पे थे। जो हमने वादे किए थे अवाम के साथ इंशाअल्लाह ताला अब पाए तकमील तक पहुंच रहे हैं और इसी तरीके से 2 दिन बाद यूसी 3
और इसी तरीके यूसी 13 मिठाई आबाद, उसके बाद यूसी गाजी दाऊद बरोई, इसी तरीके से अब हम कामों का सिलसिला फिर तेज़ी के साथ रवां दवाएँ इंशाअल्लाह ताला। जो हमने अपने कौम के साथ, जो डीएमसी मलीर की हमने होत लिया था, हमने अपने अवाम से के साथ कमिटमेंट किए थे, इंशाअल्लाह ताला फाय तकमील तक पहुँच रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने मजीद कहा कि जिन इलाकों में सीवरेज लाइंस की ब्लॉकिंग के मसाइल हैं, उन्हें रॉडिंग और सकिंग मशीनों के जरिए सफाई कराई जाए और रोजाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। चेयरमैन जिले काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि बच्चे हमारे आने वाले कल हैं, उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए हमें हर किस्म के मौके पैदा करने होंगे ताकि बच्चे अपने जहन के मुताबिक अपनी सिमत का इंतखाब कर सकें। आपको बताएं, यहाँ पे आम खबर सागा करें कि चेयरमैन जिले काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि बच्चे हमारा आने वाला कल हैं, उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए हमें हर किस्म के मौके पैदा करने होंगे ताकि बच्चे अपने जहन के मुताबिक अपनी सिमत का इंतखाब कर सकें। जिले काउंसिल के मुख्तलिफ स्कूलों के दरमियान महकमा तालीम जिले मलीर की जानिब से साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन जिले काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, सूबाई वजीर हाजी मुर्तजा बलोच और उनके साथ MPA मोहम्मद सलीम और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर हाजी मुर्तजा ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद ज्यादा से ज्यादा कराना चाहिए ताकि बच्चे अपना टैलेंट दिखा सकें। मजीद आपको बताएं कि वजीर आला सिंध तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। बच्चों को हुनर दिखाने के लिए मौके फराहम करने चाहिए। अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो अपना मुकाम कैसे बनाएंगे। मैंने हमेशा अवाम की तर्जुमानी की है, तालीम के हवाले से भी अपने फराइज अदा कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट मलीर की UC4 मुजीद कॉलोनी के चेयरमैन फिरोज खान ने इलाका मकीनों के मसाइल हल करने का बेड़ा उठा लिया। कहते हैं कि हम अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे और अवामी खिदमत पर मामूर हैं, उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन और अमली इक़दामात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मलीर की UC4 मस्जिद कॉलोनी के चेयरमैन फिरोज खान की जानिब से इलाका मक्कीनों को हंगामी बुनियादों पर सहूलतें फराहम की जाने लगी हैं। साल साल पुरानी सेवरेज की नई लाइनों की तनसीब की जा रही है जो इलाका मक्कीनों के लिए वबाल जान बनी हुई थी। इस मौके पर UC4 मस्जिद कॉलोनी के चेयरमैन फिरोज खान का कहना था कि हवाई मसाइल से मुतालिक हमें शिकायत मौसूल हो रही थी। महदूद वसाइल होने के बावजूद भी हमने इलाके में फराहमी और नकासी आब, सफाई सुथराई और दीगर मसाइल की दुरुस्ती के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इलाके में बड़ा मसला सेवरेज का है। फराहमी और नकासी आब का इदारा हमारे दायरे इख्तियार में न होने के बावजूद भी हम इलाके से सेवरेज के तबाहाल निजाम को दुरुस्त कर रहे हैं। मस्जिद कॉलोनी सेक्टर 2 ये सेवरेज का काम हो रहा है DMC की तरफ से, और मैं जान मोहम्मद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले ये 12 इंच का अप्रूवल हुआ था, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करके फिर ये 15 इंच का मेन लाइन था, इससे 15 इंच का फिर हमारे काउंसलर वगैरह सारे ये साथ गए, फिर जा कर के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मलीर जान मोहम्मद बलोच साहब से बात की। उन्होंने फिर एरिया में इंजीनियर को भेजा ये सर्वे के लिए। उसके बाद ये 15 इंच का लाइन अभी काम शुरू हुई। ये पहली दफ़ा, ये फर्स्ट टाइम समझें कि डिस्ट्रिक्ट मलीर की तरफ से UC4 में इतना बड़ा ये सेवरेज का काम हो रहा है, जिसके लिए यहाँ के आवाम और यहाँ के काउंसलर और तमाम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट मलीर के जान मोहम्मद बलोच साहब का ये शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा काम इससे पहले ये कभी भी नहीं हुआ इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उनका कहना था कि इलाका मकीन भी यही चाहते हैं कि इलाके में सड़कों से जल्द अज जल्द सेवरेज के गंदे पानी का सफाया हो जाए। हमारी पहली तरजीह भी सेवरेज के तबाहाल निजाम को दुरुस्त करना है। आवाम के मसाइल हमारे मसाइल है, लिहाजा उनके हल के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे। भाई सेवरेज का मसला यहाँ पे आए दिन होता रहता था। यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे गटर उबलते थे, बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि 20 साल पहले का ये काम है। आबादी अब यहाँ पे ये बढ़ गई है, तो जिसकी वजह से आए दिन रोजाना इस रोड के ऊपर ये पानी होता था। भाई यहाँ के आवाम बहुत ही परेशान थी, लोग बहुत ज़्यादा तंग थे। आए दिन यहाँ पे UC ऑफिस में ये शिकायत आती थी कि लाइन बंद है, ये घरों के अंदर पानी है। और मैं समझता हूँ ये काम होने के बाद इंशाअल्लाह यहाँ का ये मसला जो सेवरेज का मसला ये हल हो जाएगा। UC4 के काउंसलर अरीन रहमान ने कहा कि हम आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे और अवामी खिदमत पर मामूर हैं, उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन और अमली इक़दाम कर रहे हैं। यहाँ पे पहले जो है 9 इंच की लैंड डली हुई थी, लोग बड़े सख्त परेशान थे। तो जिस वक्त अप्रूवल हुआ इनका, तो फिर जो है फिरोज भाई के साथ हम लोग गए वहाँ पे। फिरोज भाई ने फाइट की है, और ये हमारे काउंसलर हैं सईद भाई, ये भी थे। तो वहाँ पे फाइट करके इन लोगों ने जो है 15 की लाइन करवाई।
تو پہلے تو مانا نہیں جاتا تھا، پھر جو ہے وہاں سے انجینئر کو ایکسن کو لے کے آئے یہاں پہ، اس نے یہ مانا کہ واقعی یہ علاقہ پہلے جو ہے چھوٹی آبادی تھی، ابھی آبادی بڑھ گئی ہے تو 15 انچ کی لین ضروری ہے، تو یہ 15 انچ کی لین اپروول کرا کے انہوں نے یہ کام کروایا. ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور ہم بھی اور علاقے کے لوگ بھی ان کے شکر گزار ہیں، اور جان محمد بلوچ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ کام ہمیں اس یو سی میں دیا. پہلے یہ 12 انچ کا اپروول ہوئے تھے، چیئرمین صاحب کو ہم نے بتائے تھے تو چیئرمین صاحب نے 15 کا کروایا. ان کی بہت بہت شکر گزار ہوں. ہمارے اکثر یہ بھر جاتا تھا، اکثر یہ اس کی جو لائن ڈلی ہوئی تھی بالکل مٹی سے بھرا ہوا تھا. اور اس کے پہلے جو فیروز بھائی نے یہ پمپ لگوایا ہم لوگوں کے، یہ وارڈ 2 کے اندر پمپ بھی کا کام ہوا، یہ روڈ کا بھی کام ہوا، ابھی یہ جو ٹائل فلورنگ کا بھی کام ہوا انشاءاللہ. وارڈ 2 کے اندر، یہ وارڈ جہاں آپ کھڑے ہیں وارڈ 2 کو ہے، وارڈ 2 کے اندر بہت زیادہ کام ہوا انشاءاللہ، اور سب سے زیادہ کام یہاں ہوا ہے انشاءاللہ. ان کے چیئرمین جو ہے، یہ چیئرمین ہمارا بہت اچھے ہیں اور ہم ان کو ہم لوگ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. علاقہ مکینوں نے جاری ترقیاتی کاموں پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم چیئرمین کے شکر گزار ہیں جن کی کاوشوں سے سیوریج کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. تقریباً 18 سال کے بعد یہ کام ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے قائد اتنے اچھے ہیں ملے ناظمان، اور فیروز بھائی UC4 کے چیئرمین جو بہترین کام کروا رہے ہیں. دیگر مسائل بھی اچھے سے حل ہو رہا ہے، اور کام آج 18-20 سال ہو گئے یہ نظام یوں ہی چل رہا تھا، تو یہ ان کی بہت مہربانی ہے اور ان کی محنت کا یہ نتیجہ ہے. آج عوام پریشانی سے باہر نکل رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ سیوریج کے مسائل کے ساتھ پانی کی فراہمی کے مسئلے پر بھی توجہ دی جائے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز.